Okay, very good evening to all of you. I hope that I'm audible to you. A very warm welcome to this session where we'll be covering two exams, first NPAT and second ACT. So I hope that I'm audible to you. Please write yes in the chat box if I'm audible to you. Okay, great. So let's start. So I'm again taking an assumption that all of you are appearing for these two exams, that is NPAT and ACT. Some of you would have appeared for NPAT. How many of you have already appeared for NPAT? How many of you have already appeared for NPAT? Okay, Dhruv, Kunal. Okay, once you have appeared. Great. Great. So a couple of students, they have already appeared for NPAT. That's great. Now, the point is that you must be having your retake and all if you have applied for a retake. Great. So the paper would be almost on the same lines as you have appeared. The only thing is that you can strategize better. So I'm sure Lavanya, Bhavya, Gautam, can you please write in the chat box the sequence of the sections that you had? Was your section 1 quant? Quant. Yes, true. Great. Was your section 2 LR and third VA? Great. This year they have reversed the sequence. Last year it was VA, then LR, and then quant. This year it is quant and LR and VA. Okay. So let's discuss all aspects of NPAT. I'll be taking base value as the last year paper. Base value as the last year paper. Almost on the same lines this year paper also goes. So your understanding of entire strategy that you'll be formulating for you will be primarily based on the basis कि आप एक पेपर जो last year का था उसको अपन basis लेके चलेंगे, and then from that we'll get an idea that what are the various types of topics which are asked and what is the weightage of these topics which are asked. Okay, so we'll be covering two exams. So in the first slot I'll be covering NPAT, and in the second slot I'll be covering ACT. Okay, is it clear to everyone? Okay, so the moment I said I'll be covering NPAT first. Let's start with NPAT. So NPAT this year, the paper pattern was exactly on the lines of last year. NMIMS NPAT, it consisted of three major sections: quant, reasoning and general intelligence, and proficiency in English language. In fact, in the first week, I've uploaded a video also on strategy to crack NPAT. So I'll be repeating a couple of points and then we'll be discussing in detail. And then you get, in case you have any query, you can ask to me. 100 minutes were allotted to you and there were three sections. Now, interestingly, there is no negative marking, and the three sections, they had equal weightage. But again, interestingly, this year also, if you look at the paper pattern, as such, there was no sectional time limit, but you could move to the next section only after submitting the first section, that is the previous section. Now, there is a very common question that you ask from us, that how many questions should I attempt, with which target mindset I should go. So I usually say, तुम कुछ सोच के देखो, when a batsman goes down in any batting order, क्या वो ये सोच के जाता है कि मैं आज इतना स्कोर करने वाला हूं, या मैं आज इतना मार्क्स बोल रहा हूं, इतना रन्स बनाऊंगा. So this is the same rule which is applicable on competitive exams also. You don't go with the mindset. Okay, Rahul sir has also joined us. Welcome, sir. So sir will also be available for his inputs on the strategy that you have to make for such exams. And both of us will be giving you inputs, and then you can ask questions. Today we are covering these two exams, and in coming session we'll be covering a couple of other exams. Okay,
We'll be discussing in the same fashion for IPM Rohtak also and IIM Indore also. So what I was giving an example that जब एक बैट्समैन उतरता है बैटिंग लाइन पे तो कभी भी ये सोच के नहीं उतरता कि आज मैं इतने रन बनाऊंगा या मैं आज 90s में जाऊंगा 50s में जाऊंगा. जैसे जैसे बॉल आता जाता है खेलता जाता है. And that's the same thing you have to follow. Good part is that there is no negative marking. So even if let us say you are making intelligent guesses और वो काम नहीं करता तो भी हमें नुकसान नहीं होगा. But since we have only 100 minutes, so we cannot spend more time on guesswork. ठीक है, आपको ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना है. First thing first is that you have to attempt something that you know, you're confident, so that you can get score out of the section and then you can move to the next section. Okay. Okay, safe score. We'll discuss this. अभी आ जाएगा ये, है ना? अभी मैं आपको सारा score, safe score सब बता दूंगा. Now take this for example. This were there as per the compilation from the last year paper. And even this year, I had a talk with a couple of students and I was going through the analysis available on various forums. Paper was evenly distributed. So let's say if we have to talk about areas like stats, Rigno, functions, QE, set theory, SICI, BODMAS, percentages, profit and loss, तुम देखो almost equal सा distribution दिख रहा है हर जगह. It is an equal distribution. Same is the case here, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. It's almost equal distribution. हाँ, ये जरूर कह सकते हैं time speed distance Venn diagram थोड़ा कम marks, 1 marks का question देके गया. Otherwise, there is an even distribution and equal distribution is there. Now, what does this suggest? This suggests first of all कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ के तो जा नहीं सकते कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये टॉपिक मेरे काम का नहीं है. ठीक है, रिवीजन जब कर रहे हो तो आप ये सोच के करना दैट यू हैव टू कवर अप ऑल टॉपिक्स. सो डोंट गो विद द माइंडसेट कि मैं कुछ छोड़ के चला जाता हूं. ठीक है, एटलीस्ट यू कैन सी हियर दैट ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स फॉर आस. इसमें अगर कुछ नहीं दिख रहा था तो प्रोबेबली ज्योमेट्री नहीं दिख रही, पीएनसी प्रोबेबिलिटी तो है, फिर भी पीएनसी नहीं दिख रहा. But majorly all questions were asked in one form or the other. And you know, surprisingly, if you look at their language section, their logical reasoning section, इसमें भी बहुत अच्छा distribution है. Out of 40 questions, 10 questions were allotted to pie chart, tables, line graph. That is data interpretation. So, good weightage of 10 questions to data interpretation. So again, when you are revising, you should keep in mind, even 3 questions were allotted last year to data sufficiency also. Rest, if you look at selection criteria, syllogisms, logical inequalities, visual reasoning, Venn diagram here for reasoning wala, mathematical operations, family tree, ranking, arrangements, everything was equally distributed. And then they completely made 40 questions. तो अब ये तुम्हारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग है why this is important for you. While revising topics, you can keep this in mind. Okay, these topics were asked, so while going through the revision chapters and all, you can always keep this in mind. This is weightage whereby you can revise at least these topics and you should not leave any topic. आप कोशिश करके जाओ कि आप सारे टॉपिक्स करके जाते हो. ये आपका रिवीजन स्ट्रेटजी रहना चाहिए. Now, look at verbal ability. I would say more or less it was a scoring section. और बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत इजी था, 30, 32, 33 का अटेम्प्ट इजीली निकल रहा था just by spending 20 minutes, 25 minutes. So 32, 33 का अटेम्प्ट अगर निकल रहा है इसमें, that means it was a highly doable section. Okay, now इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 3 पैसेज था of 100 and 150 words each. So passages were small and 5 questions from each passage. So total number of questions 15 from passages. Then grammar based fill in the blanks were there.
idioms and phrases were there. Then sentence correction, again grammar based questions. So this is a bundle of grammar based, this is a bundle of grammar based. इसमें vocab भी था, don't forget. Word based भी थे, fill in the blanks, but I mean ऐसा ratio था, 7 grammar based, 3 vocab based. Sentence correction 5 questions, so around 7 and 5, 12 questions, 15 from RC, grammar roughly around 12, and then parajumbles PFQ around 4. This was major distribution. So you can see that आपको RC, grammar, paraforming, ये 3 चीजें मेजर अटेम्प्ट देके जा सकती है. Idioms and phrases अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. ओके, तो यू कैनॉट आप बहुत ज्यादा उसमें कुछ सोच के नहीं कर सकते. सेम इज द केस विद ग्रामर. पैराफॉर्मिंग में इट इज मोर ऑफ लॉजिक. आरसी indirect questions were more of logic. So it's a mixed bag of logic and grammar. Logic, indirect application of critical reasoning, what you have studied in classes. Okay, so this is all about language section. Okay, sir, please, on the 3 sections, I'll start from the first one. Good evening, students. As you can see, as Kapil sir has explained to you, questions have been asked from every topic. So do not leave any topic. And what happens is typically you tend to have some favorite topics and some less favorite. And if you study only the favorite topics, because speed is so important, it may so happen that there are more difficult questions from your favorite topic. And then you may get stuck there. And when you check with your friends later, the topics which you had left, they might have very simple or direct questions. So it's important that we have gone through all topics, and in the exam, we do check out every question. Don't just leave a question because it is coming from X topic. Quadratic equations मेरे को थोड़ा टफ लगता है या probability टफ लगता है तो देखते ही छोड़ दो quadratic का क्वेश्चन. ऐसा नहीं कर. A few seconds to be spent on a question, but that decision has to be very quick. In a few seconds, not a minute. In a few seconds, whether this question seems familiar to me, can I do it? Then let me go ahead and attempt. जब attempt किया, attempt अगर पढ़ रहे हैं उस पर टाइम लगाया, attempt करना ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अब अटेम्प्ट करा और थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर लिया कि बाय चांस टाइम मिला तो वापस देखेंगे, नहीं तो एक बार मार्क तो करना ही. और जो क्वेश्चन आपने जैसे कुछ सेकंड्स में देखा और देख के आपको लगा कि नहीं ये समझ नहीं आ रहा या बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आपको इस तरह से कई क्वेश्चन होंगे. और सारे क्वेश्चंस टिपिकली मैथ्स के इतने सारे हो भी नहीं पाते हैं एग्जाम में. अब क्योंकि नेगेटिव नहीं है, आई वुड सजेस्ट आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन फिक्स कर लें. सपोज ऑप्शन सी या थर्ड ऑप्शन. तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या तो आपने टाइम ज्यादा लगाया ही नहीं, उसको देखते ही आपका नहीं ये नहीं करना, तो आप ऑप्शन सी मार्क कर दो और आगे चलो. क्योंकि आपके पास एनपैट में ये होगा जब तक एक सेक्शन आप सबमिट नहीं करोगे आप अगले सेक्शन में नहीं जा पाओगे. तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपने सबसे पहले मैथ सेक्शन आ रहा है और आपको उसमें ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उस पर कितना टाइम देना है. ये आपने अगर फिक्स कर लिया कि 100 मिनट्स में से मेरे को 50 मिनट्स यहाँ लगाने हैं, तो बस 50 मिनट से ज्यादा ना हो जाए. ऐसा ना हो आप करते जा रहे क्वेश्चंस और 50 की जगह 60 मिनट्स हो गए हैं, तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपका. क्योंकि लास्ट सेक्शन है इंग्लिश, जो टिपिकली माना जाता है थोड़ा इनके मुकाबले ज्यादा स्कोरिंग है. और अगर आपने उसमें डिसाइड किया है कि मुझे 25 मिनट्स वहां देने हैं या 20 मिनट देने, अच्छा ये चीजें भी थोड़ा डिपेंड करती हैं. आप सेक्शन वाइज आपको आपकी स्ट्रेंथ भी पता है, आपने इतनी प्रैक्टिस की है, कई मॉक्स भी दिए होंगे. इफ यू आर फास्ट इन इंग्लिश आप 20 मिनट्स रख सकते हैं, उतना नहीं है तो 25 मिनट्स रख रहे हैं वहां. और क्योंकि सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है तो आपको पता है कि आपको ओवरऑल स्कोर ज्यादा लाना है. तो जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, थोड़ा सा 2-4 मिनट आप एक्स्ट्रा उसमें यूं रख सकते हैं कि वहां से मेरे अटेम्प्ट्स जितने हों. लेकिन जो भी चीज आपने पहले डिसाइड कर ली मॉक्स वगैरह के थ्रू, वहां टाइम नहीं है स्ट्रैटेजी चेंज करने का. उस स्ट्रैटेजी पे यू हैव टू स्टिक. फिर वहां ये गड़बड़ ना हो जाए कि सोचा तो ये था और फिर वहां हम बह गए, या तो हमने क्वांट है तो 50 मिनट की जगह हमने तो 40 मिनट में सबमिट कर दिया, या
60 मिनट लगा लिए, फिर ऐसा नहीं। और अगर सपोज आपने क्वांट में और आपको जो मेरे को नहीं समझ आ रहा है, मैं एक मार्क करते चले और एंड में पहुंच गए और 35 मिनट में ही मैं तो एंड तक भी आ गया, कुछ तो आपने मार्क फॉर रिव्यू रखे होंगे, तो एक बार उनको फिर तब जरूर देख लें कि नहीं कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन छोड़ दिए या मतलब सिर्फ ब्लाइंड गेस किया है, तो उनमें से कुछ हम देख लें, कुछ तो और इजी होंगे। तो आपका जो प्री डिसाइडेड स्ट्रेटेजी, प्री डिसाइडेड टाइम एलोकेशन है, वो बहुत जरूरी है कि आपको डिसाइड पहले ढंग से सोच समझ के करो, ऐसे आर्बिट्री नहीं कि चलो सर कह रहे हैं तो चलो मैं भी ऐसे ही कर देते हैं, 50 मिनट्स 30 मिनट्स 20 मिनट्स ये कर लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लस माइनस 5 मिनट्स टिपिकल वेरिएशन हो सकता है। तो आपके सेक्शनल स्ट्रेंथ आपकी क्या है, और आप कुछ मॉक्स दें, 2-3 अलग अलग मॉक्स दें। अगर मान लो मॉक्स अब आपके पास अवेलेबल नहीं, बोले हमने सारे ट्राई कर चुके हैं, तो जो सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हैं या बुक में आपके अलग अलग हैं, 3 अलग अलग आपने एक्सरसाइज ले ली, एक मैथ्स की, एक रीजनिंग की, एक इंग्लिश की, और उनको मिला के आपका एक मॉक बन गया। ठीक है, ये ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट है, 3 वो किए, एक के बाद एक करेंगे तो एक मॉक बन गया। तो उस तरह से आप ट्राई आउट करके देखिए कि जब आप अपने आप को पुश करते हैं, स्पीड और क्वेश्चन सिलेक्शन की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखते ही विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप ये जज कर रहे हैं कि मेरे को उसको पूरा पढ़ के ढंग से अटेम्प्ट करना है या बिल्कुल ही छोड़ देना है। क्योंकि कई क्वेश्चन आपको देखते लगेगा ये तो बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम होगा ही नहीं, आप सोचेंगे बाद में पलट के आए, वो रेयर होना है क्योंकि इतने टाइम के लिए आप हार्ड प्रेस्ड होंगे कम बैक। तो वो मेरे को बस एक ऑप्शन मार्क किया उसमें और आगे चले गए। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। इंग्लिश क्योंकि ये कहा जा रहा है हर बार की स्कोरिंग है और नॉर्मली जिस तरह के क्वेश्चन है, तो 20 से 25 मिनट रखना मतलब जरूरी ये है कि सारे क्वेश्चंस हमने देख लें और अटेम्प्ट हम पूरा पेपर सारे क्वेश्चंस हम मार्क करके आए। सेम ऑप्शन इसलिए कह रहा हूं कि कभी हम टिक टैक टो खेल लें। मान लीजिए मैथ्स है, आपने सपोज 25 क्वेश्चन दिए आपसे ढंग से हो पाए, और 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपने कहा चलो ब्लाइंड गेस मार लें, तो उसमें आपने टिक टैक टो खेला, ABCD, तो हो सकता है सारे के सारे गलत निकले। पर अगर आपने उन सब 15 क्वेश्चन में C मार्क किया है, तो चांस है कि 3 या 4 तो एटलीस्ट राइट होंगे ही। प्रोबेबिलिटी आपने बहुत पढ़ी है, तो वो टिपिकली वो ये अगर 15-16 है तो 3-4 तो C होंगे। तो एटलीस्ट जो आपने ब्लाइंड, उसमें टाइम लगा के नहीं, अगर उनमें आपने हर एक में 15-15 सेकंड लगा दिए थे तो वो तो वैसे ही बहुत वेस्ट हो गया कि 15 क्वेश्चन है और उनमें आपने 5 मिनट भी लगाए, तो वो वर्थ नहीं है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है आपकी, जजमेंट, ये बहुत टेस्ट हो रही है, तो आपको इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, सो जैसा सर ने कहा कि अपन एक टाइम अलोकेशन की बात करते हैं। So suppose I'm spending 45-50 minutes on quant. This is a broad idea, tentative idea, approximate time allotted. Okay. अक्षत, इनिशियली मैंने कहा था जब एक सेक्शन सबमिट हो गया तो हम दूसरे पे जा सकते हैं, दूसरा सेक्शन तभी स्टार्ट हो जाएगा, बट फिर हम वापस पीछे वाले सेक्शन पे नहीं जा सकते। ओके, सेकंड सेक्शन जब सबमिट करते हैं तो अपन थर्ड सेक्शन पे जा सकते हैं। ओके अक्षत, सो 45-50 मिनट्स अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव टाइम अलॉटमेंट है क्वांट के लिए। 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेट टाइम अलॉटमेंट है LRDI के लिए, सॉरी LR के लिए, हाँ DI भी उसी में है। 20-25 मिनट्स का अलॉटमेंट है VARC के। नाउ इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड बेस्ड ऑन 100 मिनट्स, बट इट वुड वेरी फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हो सकता है किसी को 5 मिनट इधर ज्यादा देना है, उधर कम देना है, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ इन दैट सेक्शन। एंड उस वक्त आपको लग रहा है अगर हल्का सा 1 या 2 मिनट का प्लस माइनस हो रहा है तो और क्वेश्चन होते जा रहे हो, बट उससे ज्यादा मत करना, वरना फिर आप उस सेक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाओगे और आपने आगे का सेक्शन देखा नहीं है कैसा है। हो सकता है आगे का सेक्शन और भी इजी हो, आपका स्ट्रेंथ एरिया हो, और आप जो टाइम अलॉट करके जाते हो उसमें वेरिएशन मत आने देना, वहां वेरिएशन मत आने देना। आपको एग्जाम से पहले जितना प्रैक्टिस करना है आप कर लो। सो वॉट एवर प्रैक्टिस, मॉक, सेक्शनल टेस्ट, whatever you do as per the time limit, try it out, but no experiment while taking the test. That is extremely important. That is what sir is also saying. तो आपको अपने टाइम अलॉटमेंट का ध्यान रखना है। Is this clear to everyone? So let's move. अच्छा, एक इसमें और चीज है, क्योंकि यहाँ टाइम कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं, टाइम कम है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अब आप
हम नॉर्मली कहते हैं कोई सेक्शन शुरू किया तो 1-2 मिनट लगाओ, जरा सेक्शन को ऊपर नीचे देखो, क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, कौन से हम पहले करें। यहाँ ये सब कुछ नहीं है, ये आप क्वेश्चन 1 से शुरू हो जाना, और जो डिफिकल्ट लगते जा रहे हैं हम उनको, जैसे कहा ना, ब्लाइंड ऑप्शन सी मार्क करना है, या और फिर साथ में आप रिव्यू के लिए कर लो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो, पर करते चलो, क्वेश्चन 1 से करते चलो। इसमें टाइम मत वेस्ट करना कि पहले फील लें सेक्शन की, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, कौन से वाले इजियर हैं, तो हम पहले ये करें फिर वो करें। यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं, इट इज जस्ट अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक। ठीक है, वो हो सकता है हम आईपीएम इंदौर के जब बात करेंगे या कुछ है, कहीं डिपेंड करता है एग्जाम पैटर्न पे, कितने मिनट कितने क्वेश्चन, कि कहाँ हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो आज ये जो दोनों हैं जिन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, दोनों रेस अगेंस्ट टाइम है, तो दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे हम एनपैट और एसईटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें तो आपको बस शुरू हो जाना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो सामने दिखा उससे धड़ाधड़ हम करते चलें। हाँ मुदित, आई हैव रिप्लाइड, है ना। सो मुदित इज सेइंग कि मैंने जब पेपर दिया था पहला वाला अटेम्प्ट, तो लास्ट में मैं रिव्यू देख सकता था सारे अटेम्प्ट का। हाँ, लास्ट में आपको सारा अटेम्प्ट का रिव्यू दिख जाएगा, ओके। बट उसमें वो बिल्कुल जब टेस्ट खत्म हो रहा है, दैट्स एट द सबमिशन स्टेज ऑफ द थर्ड सेक्शन, you will get a panel where you can see all sections whatever you have attempted. तो वो किसी काम का नहीं है, अपन उसके बाद उस पर जा नहीं सकते, वो सिर्फ सबमिट ही हो रहा है उसको। I mean that's a summary of the test that you have actually taken. Okay. Now आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, लेट्स। तो जब आप स्कोर मैक्सिमाइज करते हो तो there are two things that you have to keep in mind. एक जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा के हो सकता है, और एक जो एक्यूरेसी से हो सकता है। इस एग्जाम में नेगेटिव नहीं है, इसलिए आपको पेनल्टी का पता नहीं पड़ता। यूजुअली जब एग्जाम में नेगेटिव होता है तो हमको पेनल्टी का पता पड़ता है, और हमको एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा पता पड़ती है। बट एक एग्जाम जिसमें नेगेटिव नहीं है, हमको पेनल्टी नहीं मिल रहा, तो हम उस केस में सिर्फ ये देखते हैं, खाली अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करने से कुछ नहीं होगा। आप सब कुछ लेके आ जाओ, है ना, सब कुछ अटेम्प्ट करके आ जाओ, सीडी 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 मार्क कर दो, या एस सर सेट सी 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 मार्क कर दो। दैट इज नॉट an attempt. Maximizing attempt which I am solving and reaching to an answer choice. Okay. आप में से जितने लोगों ने भी पहले एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। Many of you are writing that you face time management issue. Agreed. वो टाइम मैनेजमेंट इशू आता है इसलिए हम जिस माइंडसेट से जाते हैं उस माइंडसेट को वहां पे कैरी नहीं कर पाते। अगर हम सोच के जा रहे हैं कि हम 50-30-20 का रेशियो रखेंगे, तो हम 50-30-20 को फॉलो नहीं कर पाते, और हम 50 मिनट्स की जगह 60 मिनट्स पे चले जाते हैं, 30 की जगह 35-40 पे चले जाते हैं, तो फिर बचता ही नहीं हमारे लिए तीसरा सेक्शन। सो प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। वी आर अगेन एंड अगेन सेइंग, आपको जो भी अटेम्प्ट मैक्सिमाइजर लगाना है वो आपको अपने टाइम के दायरे में, जो आपने उस सेक्शन को अलॉट किया है, जो आप घर से सोच के जा रहे हो कि मैं सेक्शन 1 को 45 मिनट्स दूंगा, तो यू हैव टू एंश्योर दैट वो 45 मिनट्स के अंदर ही आपको काम करना है। ओके, लेट्स मूव। देखिए, इसमें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक्स वगैरह में, अगर सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें कि आपकी मैथ्स तो वीक है, इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है आपकी, पर स्ट्रांग तो है, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, पर थोड़ा सा आप स्लो हो, मतलब आपको ये लग रहा है आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर ये जैसे 40 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको देख के करने हैं, तो मे बी आपको 30 मिनट्स तक तो लगते हैं करीब, पर आपका एक्यूरेसी अच्छी आती है इंग्लिश में और मैथ्स में बहुत ही, तो हो सकता है आप अपना टाइम मैनेजमेंट का जो है मैथ्स में थोड़े से 5 मिनट और कम दोगे, इंग्लिश को आप 25 की जगह 30 मिनट्स भी कर दोगे। पर ये बहुत ऐसा स्पेसिफिक केस हो गया जहां आप काफी लॉपसाइडेड है, क्योंकि नॉर्मली जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, और आप में सभी की अच्छी है, कि हमने देखा है 20 से 25 मिनट्स अच्छी है, तो 20 मिनट्स में ही आपके ये 40 अटेम्प्ट्स आप कर पाओगे, नहीं तो 25 मिनट्स में, इसीलिए ना 20 to 25 मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो ये वाले एस्पेक्ट जो हैं कि मिनट्स कितने अलॉट करें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप मॉक्स कर करके 2-3-4 करके आप अपनी स्ट्रैटेजी फाइनल करना है इसको, एंड देन उस पर बिल्कुल स्टिक होना एग्जाम में। लास्ट मोमेंट अच्छा नहीं, ऐसे की जगह हम ऐसा कर लें, ऐसा मत सोचना बस। Okay,
So a lot of you are asking this question, target marks, target score. Please don't go with this mindset that I have to score 90 marks or 92 marks or 85 plus marks. But as per the last year cutoffs, 90 marks सेफ साइड पे अगर स्कोर करता हूं तो मेरे को बीबीए कॉल आ रहा था इससे एनपैट से। जैसे जैसे आप कोर्सेज चेंज करोगे धीरे धीरे ये रिड्यूस होता चला जाता है। बट वही मैं वापस बोल रहा हूँ ये चीज, आप इस माइंडसेट से तो एग्जाम देने जाना मत, को इतना मार्क्स लाना है या इतना स्कोर करना है, वो स्कोर कभी नहीं होगा। आप बल्कि उस स्कोर के उलझन में पैनिक कर जाओगे, जो आपको आता है आप वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट पे अपने को जो आता है, जैसे जैसे बॉल्स आ रही है वैसे वैसे आप उनको खेलते जाओ। सर बिल्कुल, आपका सिर्फ एक एम है, आपकी तरफ से आप बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे वहां, बस दैट यू शुड गिव ऑफ योर बेस्ट, यू शुड फील सेटिस्फाइड जितनी आपने तैयारी की थी। देखिए वो भी आप सब में अलग अलग वेरी करता है, कौन साल भर से सीरियसली पढ़ रहा था, कौन 6 महीने से, कौन 3 महीने से और कौन सिर्फ पिछले 1 महीने से। ठीक है, जितनी आपने तैयारी की, जितना समय मिला, जितनी आपने प्रैक्टिस की, जो आपको फीलिंग आती है कि क्या आप कर सकते हो, तो बस एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे पाओ। यू शुड कम आउट सेटिस्फाइड विद दैट। उससे नंबर कितने आएंगे इज नॉट इन योर हैंड्स, और वो आपको जैसे मैंने कहा टारगेट करके आपको अटेम्प्ट करने भी नहीं की, आपको कुछ नहीं कह सकते आप कि एक्यूरेसी कितनी रहेगी। कुछ आइडिया आपको लगता है जब आप मॉक्स देते हो, तो कई बार यही होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम से बाहर आते हैं, जैसे इंग्लिश है, फीलिंग तो आपको यही आती है ना हर टेस्ट देने के बाद कि मैंने तो जो किए सारे राइट ही होंगे, पर फिर भी क्या होता है जब स्कोर आता है मॉक्स में या कहीं भी सेक्शनल टेस्ट में, तो यार एक्यूरेसी तो सिर्फ 75% है या 80% है। तो फीलिंग भले आए कि सारे राइट हो रहे हैं, चाहे मैथ्स में होगा अगर आपको लगता है, तो आपको वहां से ये आइडिया है कि आपकी इन जनरल एक्यूरेसी क्या चल रही है। तो जो मॉक्स में चल रही है और वो एक्चुअल एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, अनलेस कि कोई एकदम से वो ड्रास्टिक चेंज कर दें, डिफिकल्टी लेवल्स में कम या ज्यादा कर दें, जो कि ऐसा चांस नहीं दिख रहा है कि कोई ड्रास्टिक चेंज होगा। और ऑलरेडी एक 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, एक विंडो काफी समय से चल रही है, तो जो चल रहा है उसी डिफिकल्टी लेवल पे, उसी पैटर्न पे एग्जाम ये चलता रहेगा। तो आपको सिर्फ आपका बेस्ट देना है। ना इसमें एक दोनों एग्जाम्स में, बिकॉज जैसा सर ने आपको बोला, आज जो दोनों एग्जाम्स डिस्कस कर रहे हैं, एक 100 मिनट्स का गेम है, एक 60 मिनट्स का गेम है। दोनों एग्जाम में एक बात पक्का होता है, व्हेन वी आर इन अ हरी तो वी कमिट लॉट ऑफ मिस्टेक्स which otherwise when we are a little focused, a little concentrated, तो हम वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। बट आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा कॉशियस रहो और आप स्पीड का चक्कर में, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड, आप ये सिली मिस्टेक्स नहीं करें। तो वो आपको खुद को ध्यान रखोगे अगर, तो ये नहीं होगा। बिलीव मी, अगर हम ध्यान रख के अटेम्प्ट करते हैं, इवन टाइम का शॉर्टेज है, स्पीड तेज रखनी है, फिर भी आप अपनी सिली एरर्स अगर अवॉइड करते हो तो आप करो, बहुत अच्छा है। देन आपके अटेम्प्ट्स स्ट्रीमलाइन कर लो। इसका मतलब होता है जो भी आप एग्जिस्टिंग अटेम्प्ट्स कर रहे हो मार्क्स में, आपको काफी हद तक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग। सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग मोर देन दैट, दैट मीन्स इट इज fully possible that the difficulty level of the exam is easier than the mock. And if you're not able to attempt that day, but you are attempting in mocks, that means the difficulty level is difficult. So cutoffs may go down. Now target cutoff काम नहीं आएगा. If it is difficult, then it is difficult for everyone. So naturally, if it is difficult for everyone, the cutoffs will go down. If you are confident and sure about your preparation, then you will be able to gauge the difficulty level and then you can attempt accordingly. तुम्हें लग रहा है लगातार लाइन से डिफिकल्ट क्वेश्चन आता जा रहा है, so that means वो सबके लिए डिफिकल्ट है, तुम्हें वहां पैनिक नहीं करना, तुम्हें कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं करनी कि ये मेरे से नहीं हो रहा पेपर। एंड देन उससे क्या होता है, हमारा वो सेक्शन तो खराब होता ही होता है, उसके आगे का सेक्शन भी खराब हो जाता है, फिर उसके आगे भी सेक्शन खराब होते चले जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल लिंक्ड विद ईच अदर। सो आप जो अटेम्प्ट करते हो वो आप बिल्कुल सोच के ध्यान से करो, कीपिंग इन माइंड दैट जो आपके अटेम्प्ट्स हैं वो मॉक्स के जैसे हो, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, हो सकता है डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया हो। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजी। कीप इन माइंड
here strategy means right now in this case time allotment. Stick to the time allotted to a particular section and then move ahead. Okay, sir. तो इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ही अब हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो अधिकतर केसेस में एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती चलती है, और इनवर्सली तो ये इन जनरल है, कई स्टूडेंट्स के साथ तो कुछ बहुत ही ज्यादा डिप ले लेती है, क्योंकि बस वो हमें करने हैं क्योंकि इतना कम टाइम है। तो ये आपको सडनली एग्जाम में तो हम टाइम्ड है, वो कुछ नहीं और कर सकते, ऑटो सबमिट हो जाएगा या सब करना ही है, इसलिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो सेक्शनल टेस्ट मॉक्स, यहाँ आपको बार बार घड़ी सामने रख के बिल्कुल वो टाइम्ड वाला अपना करके सेक्शनल टेस्ट बुक की एक्सरसाइज जहां से भी कुछ भी उठाओ, इतने क्वेश्चन हैं, चलो मैं आई विल डू इन सो मेनी मिनट्स। तो मतलब आपको क्या है, देखना है कि उनमें से मैं छांट के आई एम डूइंग द इजियर वन। तो ये जजमेंट जो देखते ही फटाफट हम डिसाइड करें और बिना पैनिक किए हम स्पीड रख सकें, तो स्पीड ऐसे बढ़ती है, वो चीज हमें करनी है, सो दैट एग्जाम में वो पैनिक ना आ जाए कि एक तो स्पीड के कारण सिली एरर्स ना हो, और दूसरा कुछ अगर डिफिकल्टी लेवल चेंज हो गया एग्जाम का तो उसके कारण पैनिक नहीं है। ये होगा भाई जैसा भी है, जैसा तुमने कहा, इट इज द सेम फॉर एवरीवन। तो वो कॉन्फिडेंस आपको खुद में होना चाहिए। जितनी कॉन्फिडेंटली आप अप्रोच करोगे एग्जाम, तो ये मेंटल गेम हो जाता है एट दिस स्टेज। अगर जिसने भी, देयर आर से 1000 स्टूडेंट्स हु हैव ऑल प्रिपेयर्ड हार्ड, एंड इफ 100 आर टू बी सिलेक्टेड, तो 1000 may be equal in knowledge, but who are the 100 who will get calls, who are able to keep their cool in the exam? So it's not just about knowledge, it's about that composure, it's about the delivery in the exam. तो आपको अपना mindset बहुत अच्छे से रखना है कि मेंटल गेम हो जाती है after a certain stage of preparation. Okay, so important point है that अपन इस पे बात कर चुके, स्पीड स्किल, स्पीड एक्यूरेसी सब important है, इस पे बात हो गया। Analysis of marks. Even at this stage in the last few days, when you are taking full length test, when you're taking full length mocks, try to analyze mostly wrong questions and try to identify reasons, at least in VARC, that why you are wrong. And in maths, try to understand that is it a specific topic in which I am getting questions wrong consistently? Even in LR, is it a specific topic in which I am getting questions wrong consistently? तो जितने भी wrong questions आपके बाहर निकल के आ रहे हैं, उन wrong questions का analysis with a detailed reason, and then comparing your reason with the right answer choice, with the correct reason given, or even let us say nowadays when you are going to the center, you can even discuss the reason with the faculty member and ask them कि सर इसका reason ये क्यों रहा, मैं तो ऐसे मार्क करके आया. So even in the last stage, last time of the preparation, you can do a detailed analysis of mocks, and believe me, this will help you a lot. So yeah, see what's also important is as Kapil sir said, wrong questions को आप analyze करो, उसके अलावा आप right questions को भी analyze करो जो आपके right हुए हैं, कि could you have done them faster, क्योंकि ये speed test है, right तो होगा ही कई क्वेश्चन, लेकिन देखो सिंपल सा ये है, अगर मैथ्स का एक क्वेश्चन 3 मिनट लगा के राइट होता है तो इट इज नॉट वर्थ इट. उसकी जगह आपने अगर वो छोड़ दिया होता, कहीं आगे आप जाते, तो शायद जो आपने बाद में क्वेश्चन छोड़े, आंख मीच के तुक्का लगाया क्योंकि टाइम नहीं था, 2 क्वेश्चन उतने ही टाइम में आपके शायद राइट हो जाते. तो आपको मॉक्स भी जब दिए, हमने कितने क्वेश्चन जब किए, तो अब क्या होता है, मॉक का एनालिसिस जितनी जल्दी इमीडिएटली आफ्टर द मॉक करेंगे, उतना फ्रेश है आपके माइंड में कि आपने एग्जाम में आपका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था. एंड देन वो पूरा फ्लैशबैक चलना चाहिए जब आप एनालिसिस कर रहे हैं कि व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड. ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा, जैसे सिर्फ अच्छा, जैसे एक्चुअली अगर आप मॉक कर रहे हैं तो आपके पास या तो पेपर पेन है, ऑनलाइन कर रहे हैं, पेपर बेस्ड है, तो वहाँ है. व्हाट यू शुड डू इज जो आपने गेस किए सिर्फ, क्योंकि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉक्स में भी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे,
लेकिन जो भी आपने गेस की हैं उनको आप मार्क कर लें कहीं, या आप अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो पेपर पे उस क्वेश्चन नंबर लिखते चले जाएं कि ये तो मेरे गेस थे, ठीक है, सो दैट जब आप एनालिसिस जब कर रहे हैं तो आपको पता है जो आपने अटेम्प्ट किए थे उनकी आपकी पिक्चर दिमाग में चल रही है, मैं क्या सोच रहा था कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर मुझे कितनी देर लगी ये अटेम्प्ट करने में, was there a quicker way of doing it? Yeah, when I look at this question now again, could there have been a better way? Could I have used the options? Could I have done some faster calculations? या ये इतना लंबा क्वेश्चन था, this was a question which I should have left. So it was my mistake और जजमेंट गलत थी कि मैंने ये अटेम्प्ट किया. और जो गेस वर्क मारे थे, अब गेस वर्क भी टिपिकल है, कुछ तो थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की और फिर लगा ज्यादा टाइम हो गया या कंफ्यूज हो गए ऑप्शन में और एक ऑप्शन मार्क कर दिया. टिपिकली जैसे आरसी है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, अब देखो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना है कि उनको दोनों को ऑप्शन को वे कर रहे हैं, वापस 3 बार सोच रहे हैं ये कि ये, ऐसा नहीं. वो आपको गट फील से एक ऑप्शन उनमें से मार्क करना है और आगे जाना है. तो वो थोड़ा सा एक हम कहेंगे इंटेलिजेंट गेसिंग हो गई, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 2 में से किया. और कई जगह ऐसा हो रहा है कि टाइम ही नहीं बचा तो हमने तो आंख मीच के कोई एक ऑप्शन मार्क कर दिया था. तो जहां टाइम नहीं बचा वाला था वो जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो अब हमें देखना है वो क्वेश्चन अगर मैं अभी देखता हूँ तो क्या वो इजी था, तो वो मेरी गड़बड़ हो गई ना टाइम मैनेजमेंट की. ऐसे रह गए क्वेश्चंस कुछ कि जिनको हम देख ही नहीं पाए, ब्लाइंडली अटेम्प्ट करना पड़ा. तो ऐसा ना हो जाए, जितने क्वेश्चंस हैं तो हमारी स्पीड ऐसी रहे कि हम एंड तक के सारे क्वेश्चन देख पाए. हो सकता है वो 39th एंड 40th क्वेश्चन जो है मैथ्स में वो ऐसे हो कि देखते ही हमें आ जा रहे, इस तरह के तो मैंने मॉक्स में पहले प्रैक्टिस में बहुत किए हुए हैं, देखते ही आपको 20 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन हो गया और आप वहां तक लेकिन पहुंचे ही नहीं थे. तो इसलिए ये स्पीड हमारी चलती रहे और मॉक्स का जब एनालिसिस है उन्हीं से हमें समझ आएगा क्या हम हमारी स्पीड किस तरह से हमने रखी है, क्वेश्चन का सिलेक्शन हम ठीक तरह से कर पा रहे हैं कि नहीं, और वो हर बार इंप्रूव होगा. उससे लर्निंग आएगी आपकी रॉन्ग क्वेश्चन से कि हमें कौन से टॉपिक्स हमारे वीकर हैं या हमारी गलतियां किस तरह की हो रही है, स्पीड के चक्कर में गलती हो रही है, सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन पढ़ने में समझने में कोई वर्ड्स में हम कंफ्यूज हो गए उससे हो गई, कुछ हमने स्किप कर दिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में इसलिए गलती हो गई, क्यों गलती रही वो भी समझ आएगा. और जो राइट हुए वहां हमें एनालिसिस से करना है कि हम फास्टर और कैसे जा सकते थे. ये वाले आसपास आपको एनालिसिस में बहुत ध्यान देते रहना है. एनालिसिस इज द की. देखो पढ़ाई तो जहां तक हम आई एम एक्सपेक्टिंग आप सबने एक बार कोर्स पूरा कर लिया होगा, टॉपिक्स सब में आप कंफर्टेबल होंगे. तो वंस यू रीच दैट स्टेज then it is this analysis which helps you improve further. This analysis से strategy जो आपकी बनती है और इसी से ही वो डिफरेंस आता है वो स्टूडेंट्स का, किसका सिलेक्शन हो पाएगा और किसका नहीं हो पाएगा. Okay, so last thing for NPAT that you have to keep in mind, which I'm saying again and again, do not be over influenced by the past papers, past trends, past cutoffs, target scores, etc. Although 2-3 साल से स्टैटिक है, उसी लाइन पे चल रहा है, still have an open mind for all possibilities. Okay, डिफिकल्ट की भी इजी की दोनों साइड से पॉसिबिलिटी रखना, जो आता है उसको खेलता जाना, जैसे जैसे बॉल्स मिलती जाएगी वैसे वैसे प्ले द गेम, बट शो योर गेम. ओके, शो योर बेस्ट पॉसिबल गेम rather than keeping or going with some pre-decided notions, pre-decided cutoffs, pre-decided marks. Okay, this you have to keep in mind. Okay, few things that you have to keep in mind. Last minute cramming to be avoided. क्या क्रैम करोगे? अच्छा बताओ, चलो ये इसकी बात करते हैं. क्या क्रैम करेंगे हम? I mean, ऐसा हम रिवाइज कर सकते हैं, क्वांट फॉर्मूला, ग्रामर रूल्स रिवाइज कर सकते हैं, एक्सेप्शंस रिवाइज कर सकते हैं हम, और क्या क्रैम कर सकते हैं? I mean, as such, there is no specific point that you have to cram. It's all about practicing aptitude, which you have been doing from last 1 year, last 6 months, last 5 months. Now it's time to revise what you have done. Okay. If any specific area is weak, let's say PNC probability is weak. So last few days, giving more and more time to PNC probability would not make much sense. Rather than leaving that question blindly, just check the question. If it is very easy in terms of difficulty, attempt it. Else, you can just mark a choice and move on. Okay. Sleep well in the last 2-3 days. Avoid taking a mock on the last day.
avoid late night surfing and gaming, which is like something that you guys like to do a lot. Late night apps, games, okay? Avoid that, okay? This, this generally generates a stress hormone. Cortisol release करता है ये night gaming and surfing. So इससे क्या है, थोड़ा बहुत ठीक रहता है दिमाग अगर हम नहीं करते. कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं, वो गेम्स खेलने से और सोशल मीडिया करने से ही स्ट्रेस दूर होता है. वो ऐसा रॉन्ग नोशन कई बार रह जाता है. बट लास्ट फ्यू डेज आई होप वैसे भी अभी आप लोगों ने वो सब मिनिमाइज कर रखा होगा. अभी आप सब पढ़ाई पे फोकस कर रहे होगे. सो जस्ट इंश्योर दैट दैट कंटिन्यूज. एंड अगर आपने पहले जो भी मॉक्स दिए हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह की हैं बुक से, और कहीं अगर आपने नोट कर रखे हैं या मार्क कर रखे हैं जो क्वेश्चंस आपके उस समय गलत हुए थे पहले, या आपको लगे बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे हैं, उनको आप कुछ दिनों में जो रिवाइज करने की बात है, तो ऐसे आप डायरेक्टली सिर्फ उन क्वेश्चंस को उठा सकते हैं. अब सारी बुक की एक्सरसाइज, सारे इजी क्वेश्चन भी दोबारा करें, इतना कोई समय नहीं होगा. सो जस्ट पिक सम सेट्स, सम मॉक्स, LRDI सेट्स हैं, उनको अगर दोबारा देख रहे हैं, ओके, जस्ट रीइंफोर्सिंग पहले गलत हुआ था, या व्हाट इज द राइट अप्रोच इन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, इन दिस काइंड ऑफ अ सेट. सो जस्ट मेंटली अपने आप को गियर अप कर रहे हैं कि whatever mistakes I have done in the past, that I have to avoid these mistakes. That's it. So just giving you a snapshot, 100 minutes, 50, 30, 20. I mean, broad idea. 45 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, वो आप अपना डिसाइड कर लेना. एक broad idea दे रहा हूँ, 50, 30, 20. एक specific important line दे रहा हूँ, do not spend excess time on any one section. जो भी टाइम अलॉट करके गए हो उसके हिसाब से जाके उसको स्पेंड करना, उससे ज्यादा स्पेंड मत करना. ठीक है, ओके. तुमको बड़ा क्लियर कैटेगराइजेशन बता दूं, हर सेक्शन में ऐसा होता है दैट क्वेश्चंस आर ऑफ 3 डिफिकल्टी लेवल: इजी, मीडियम, डिफिकल्ट. We have to identify easy questions and attempt them so that we get some marks, and leave difficult questions. अब उन पे बल तो जलता नहीं. तो just by scanning a question, and if you practice the questions well, then you get an idea. Okay, this is something what I've already done, and I know it's very difficult. उसको छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ, अभी तो नहीं हो पाएगा. Okay, ये अगर है तो आप इसको जीत जाओगे. आपको किसी सेक्शन के लिए, किसी एरिया के लिए पैनिक नहीं करना. अगर वो बहुत डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए होगा, है ना? क्योंकि आप, मैं मान के चल रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल. सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, देन बिलीव मी, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. डोंट वरी, डोंट पैनिक, बिकॉज दिस कंडीशन, ये जो प्रेशर आप क्रिएट करोगे, ये अगले सेक्शन को खराब कर देगा. और ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये उसके अगले सेक्शन को खराब कर देगा. सो यू हैव टू एंश्योर दैट आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे अपने allotment के हिसाब से चलना है, and you should not spend extra time to that section. Bas, that's it. That is what you have to keep in mind. Okay. Guesswork, yes, there is no negative marking, but don't waste time because of guesswork. पता पड़ा अपन तो अकड़ बकड़ करने घर पे बैठ गया, ABCD, and you know I am wasting my time. Don't do that. Rest, guesswork मारने में कोई दिक्कत नहीं. Okay. This we have done. Now let's move to the next exam, ACT. So I hope that all of you would have applied to ACT also. That is Symbiosis entrance test. All of you have applied? All those who are sitting here? Yes. Okay, great. Fair enough. So let's understand this entrance test. It's a typical speed test. And you know, this is the same pattern which they are following in their PG exam also nowadays. 60 questions, 60 minutes. And in the UG entrance test, that is ACT for you guys, it is 60 questions, 60 minutes. So again a speed test. All topics are there, evenly distributed. But 60 questions, 60 minutes में तो और थोड़ा difficult हो जाता है. यहाँ पे number of questions from a particular section would be very less. मतलब 12, 13. अभी मैं आपको breakup दिखाता हूँ. So the basic game is controlling those 60 minutes. You can see on my screen, controlling 60 minutes, set will be yours. Yes, it is all about controlling those 60 minutes.
बिकॉज 2 आवर टेस्ट में बोला जाता है 2 घंटे हमें एग्जाम को देने हैं, 2 घंटे हमारा करियर डिसाइड कर देते हैं, तो ये तो और कम रह गया. 60 minutes will decide whether you are getting admission in the university or not. Okay, so understand this. ACT General, I am more or less talking about ACT General. ACT General is conducted for SICSR, SCMC, SSC, SSLA, SCMS Pune, SCMS Noida, SCMS Nagpur, and the most sought after is SCMS Pune, which is offering their PBA program. Okay, so that is ACT General. Now look at this. Main college कौन सा है? हाँ, that is main college. ACT, that is Symbiosis Pune. SCMS is the main program. BBA program is the main college. If you're talking about BBA. Now see, English. It's a game of 60 questions. Quant, 60 questions. General awareness, 16 questions. Analytical and logical reasoning, 12 questions. Okay, 60 questions, 60 minutes. No negative marking. So you can start from question number 1 and you can go to question number last 60. Here sectional allotment बहुत ज्यादा help नहीं करेगा, तो मैं आपको sectional allotment हम advise भी नहीं करेंगे. But ये भी ध्यान रखना पड़ेगा that you'll have to keep in mind 16 questions के बाद section change हो रहा है. बस इस section में जो GK लेके आएगा, you will have to spend minimum time. That you have to keep in mind. वहां आपको मिनिमम टाइम स्पेंड करना है. सो 1 to 60 when you are going, I mean you are not going in a particular section wise, क्योंकि 60 मिनट बहुत छोटा टाइम होता है, उसको इतना ब्रेकअप करना आई वुड नॉट एडवाइज दैट. तो इसलिए लगातार चल सकते हो. अभी सर से भी अपन ओपिनियन ले लेंगे. अगर वो कहते हैं कि अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, अपन डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, है ना. बट लगातार चलने में फायदा है, क्योंकि सेक्शन स्विच कर सकते हैं अपन, एक से दूसरे में आ सकते हैं. So we can always move around here and there. Okay. 21 paper was on this pattern only. It was a home-based test. Okay. So it was exactly the same pattern, but it was a home-based test. इस केस में उन्होंने वेबसाइट पे ओपन लिख रखा है home-based और at center. मेरे को लगता है सेंटर पे ही होगा, because everything is normal. So you'll get admits. Admit cards will be there, and then you will be appearing for the test on a particular center. Now let's look at English section. Okay, this is last year analysis. देखो बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है. एक क्वेश्चन अब मैं इधर लिख देता हूं. ग्रामर है, एक्टिव पैसिव पे आ गया. नियरेस्ट मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, फाइंड द राइट कंडीशनल सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स 2. ये दोनों ग्रामर बेस्ड आ गया था. मीनिंग ऑफ कोट इन इटैलिक्स, तो इट्स idioms and phrases, usually idioms and phrases. Synonyms, vocab based, past perfect, again grammar. Parajumbles, 3 questions. So maximum weightage was for idioms and phrases and parajumbles. अब इसके अलावा 1 2 + 1 3 3 + 1 4 questions to grammar. 3 parajumbles. Find the right conditional भी grammar ही होगा. हाँ, ये भी grammar है. 4 1 2 + 2 4 + 1 5 questions grammar, 3 questions parajumbles, and rest others vocab and all these things. So यहां से तुम्हारी एक तो सबसे बड़ी टेक अवे ये है कि आरसी तो है ही नहीं, there is no passage. So while revising for ACT, revise all rules taught in class in grammar, whatever is given in the booklets, whatever exceptions are given in the booklets, and whatever full length tests that you appeared for, all questions of grammar where you went wrong, revise them carefully. That will really help you to prepare for the English section. Okay. Then simple synonyms would be there. तो इसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. रूट्स अगर करी हुई हैं तो बहुत फायदा रहेगा, एंड यू कैन डू रूट बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, दिस इज एग्जैक्टली द लैंग्वेज स्ट्रक्चर. अब इससे भी स्टार्ट कर सकते हो तो, बट 1 to 60 ही बेहतर है, बिकॉज 60 मिनट 60 क्वेश्चन का गेम है. सो विच एवर सेक्शन यू गेट ए सेक्शन 1, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन. सर
ये तो क्योंकि 60 मिनट्स का ही स्पीड टेस्ट है, तो बस आप फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो जाओ, 60 तक आपको पहुंचना है। सेक्शनल अलग अलग सेक्शन, अलग अलग कोई सेक्शनल परफॉर्मेंस भी वो लोग नहीं देख रहे हैं, ओवरऑल स्कोर से सीधा होना है। तो आप तो फटाफट जाते हैं ना, कोई टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शंस का नहीं, बस यही होता है। देखो हमेशा जीके लीस्ट टाइम, इंग्लिश सेकंड लीस्ट टाइम, रीजनिंग थर्ड, मैथ्स में सबसे ज्यादा लगता है, जनरली लगता है मैथ्स, फिर उससे कम रीजनिंग में, उससे कम इंग्लिश में, उससे कम जीके में। तो वो हम ध्यान रखें, जीके में या इंग्लिश में जब वही होता है ना, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, बस फटाफट आपको मार्क करके जाना है, उनमें अटके नहीं, कि वो वे नहीं करते रहे ऑप्शन ये बेटर कि ये बेटर, गट फील। ये आपको मॉक्स में या सेक्शनल टेस्ट में है, तो ये आपको प्रैक्टिस यही करनी है कि हम किसी भी क्वेश्चन में अटके नहीं। हो सकता है गलत भी हो जाए, कि हम जो गट फील से चले गए, बाद में हमने देखा एनालिसिस गलत हो गया, अगर हम 2 बार और सोचते तो शायद राइट हो जाता। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन में इस तरह से 2-2 बार सोचने लगे, तो आपके अटेम्प्ट्स बहुत कम रह जाएंगे, मतलब सीरियस अटेम्प्ट्स। देखो अदरवाइज तो आंख मीच के मार्क करने में तो आई थिंक 2 मिनट लगते हैं, पूरे 60 क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे, तो वो पर्पज नहीं है। तो आप ये स्पीड और ग्रामर, क्योंकि यहाँ आरसी भी नहीं है, तो सिर्फ पैराजंबल है जो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, और सब तो ऐसे क्वेश्चन हैं कि देखते ही आपको मार्क करने वाली बात होनी चाहिए। तो वो 13 क्वेश्चंस पैराजंबल्स के अलावा, अगर यही ब्रेकअप हम माने, तो वो 13 क्वेश्चंस तो 3 मिनट 4 मिनट्स में होने चाहिए, और इनमें 1-1 मिनट भी लग गया तो मतलब 5 to 7-8 मिनट्स मैक्स फॉर इंग्लिश। जीके 3 to 4 मिनट्स, 16 क्वेश्चन है और देखना है, मार्क करना है। सो टिपिकली आपका मतलब आइडियल वो तो हो जाए कि 10 मिनट्स में हम इंग्लिश और जीके कर लें, 10 और 15 मिनट्स के बीच का टाइम। अब वो अलग अलग स्टूडेंट्स की जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। रिमेनिंग 45 मिनट्स हैं, जिसमें आपको मे बी 25 मिनट्स मैथ्स एंड 20 मिनट्स रीजनिंग डीआई है, या वो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, जब आप कुछ मॉक्स भी दे रहे हो, सेक्शन टेस्ट दे रहे हो, तो उसके हिसाब से देखते हुए वो ब्रेकअप आप। अब ब्रेकअप ऐसा नहीं है कि ढूंढ के मेरे को इतने टाइम है, मतलब ये तो एक जनरल वो है कि ऐसा हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस करते हो कि देखो क्या मैं उस स्पीड से कर पा रहे हैं 16 क्वेश्चन इंग्लिश के, क्या हम सच में हम 8 मिनट्स में 7 मिनट्स में कर पा रहे नहीं है, तो हाउ डू आई पुश माई सेल्फ टू डूइंग दिस फास्टर। मुझे टाइम क्यों लग रहा है पढ़ने में? कई बार आदत होती है हमारी, वी आर वेरी केयरफुल कि हम हर क्वेश्चन 2 बार पढ़ते हैं। कई बार होता है, उससे फायदा भी होता है कि पहली बार में पढ़ा तो डायरेक्शंस में गए, कोई चीज हम मिस कर गए, सेकंड टाइम पढ़ा। लेकिन जब ये स्पीड टेस्ट है तो 2 बार नहीं, 1 बार ही हम ढंग से पढ़ लें, आगे चलें। ठीक है, हम ऑप्शंस में वे करते रहते हैं 2 में, तो हमें वो गट फील से हमें फटाफट, तो वी हैव टू प्रैक्टिस टू बी फास्ट इन दीज। सो कॉन्फिडेंस से ही आएगा कि बस एक बार देख लिया जो किया, मार्क एंड मूव ऑन, मार्क एंड मूव ऑन, हर बार बस ये आपको करते चलना। Look at analytical and logical reasoning. There are 12 questions. So ideally, according to sir, if I look at distribution, this is not a fixed distribution. This is just a tentative idea. If I have to keep it in my mind when I'm attempting the test, then I think 15 minutes to 20 minutes time, I can easily spend and attempt questions like statements and cause, clocks, coding, decoding, blood relation, alphanumeric series, order ranking, calendar, मिसिंग सीरीज, लॉजिकल सीक्वेंस, सब कुछ एक एक क्वेश्चन दे रहा है। सो आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस चीज को छोड़ के चला जाता हूँ, या आई विल नॉट बी अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर एरिया. सो यू आर स्पेंडिंग 20 minutes, you can actually look at attempting all 12 questions. And again, there is no negative marking, so you can actually attempt 12 questions also. आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, बिकॉज ये हाई स्कोरिंग भी था, आई रिमेम्बर, ये हाई स्कोरिंग भी रहेगा फिर कट ऑफ में, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आगे निकल जाना, उसी में आपके लिए बेनिफिट है. ठीक है, आपने रीजनिंग देख लिया, अब आप मैथ्स देखो. नाउ इफ यू लुक एट मैथ्स, लीनियर इक्वेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें भी 1 2 1 2 1 2, एक्सेप्ट फॉर ज्योमेट्री देयर वर 3 क्वेश्चंस, HCF LCM 2 questions, percentages 2 questions, rest 1 question each. So around 16 questions were there. And you can simply attempt these 16 questions in 25 minutes. 25 minutes का safe time, 25 plus 20 45, and then उधर 15 मिनट स्पेंड कर रहे हैं अपन, तो 45. अपन इसको ब्रेकअप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा सर ने आपको बताया, इंग्लिश प्लस जीके 15 मिनट्स एंड क्वांट प्लस LR 45 मिनट्स. यू कैन डू दिस ऑल्सो.
ओके, सो आप 60 मिनट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो. बट अगेन while रिवाइजिंग you can keep this in mind that all topics are there, equal distribution है, एक एक क्वेश्चन ही है, कम क्वेश्चन आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन सारे टॉपिक्स को इक्वली रहेगा. So and there is no topic which is important, there is no topic which is less important or which is not, you know, relatively which is not important for you. All are equally important. Revision सबका करके जाना, किसी को छोड़ के मत जाना. General awareness में 12 questions were there and distribution was 7 plus 5. 7 questions on current. Usually 3 months जो न्यूज़पेपर में आपने अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो ये 7 क्वेश्चन आप निकाल लो, आपको आ जाएगा. If you have gone through the newspaper in past 3 months, 3 months newspaper. And static GK, 5 questions would be there. It could be from books and authors, it could be from awards, it could be from persons and places, it could be from important history points, it could be from days. So these are static questions which they usually ask. Okay, so ये भी अगर आता है तो ऐसा सर ने आपको कहा बहुत कम टाइम स्पेंड खाएगा आपको 5 मिनट लगेगा इसको पूरा अटेम्प्ट करने में. So 10 plus 5, 15 plus 45. Okay, so this is typically what the paper is. Okay. अच्छा, ये मैंने 12 का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है इसमें, रुको एक है ना. 16. It is 16. It is 16. 16 questions were there. 16 questions were there. 7 plus 5, 12. Plus 4 more questions were there. Okay. So usually जो पेपर था उसमें स्टैटिक तो 5 ही थे, बाकी सारे करंट ही थे. So I would say 11 plus 5. Because this was there last year that majority questions were from current GK. So current affairs आप क्या क्या कर लो, आप 3 महीने का करंट अफेयर्स ढंग से अगर कर लेते हो, वैसे तो 6 मंथ्स बोला जाता है, अप टू 6 मंथ्स, लेकिन चूंकि अभी टाइम कम है, रिवीजन करना है, तो लास्ट 3 मंथ्स का भी करंट अफेयर्स आप कर लोगे तो यू विल बी एबल टू हैंडल दीज 16 क्वेश्चंस. ओके, एक ये थोड़ा जैसे रीजनिंग में जैसे सीरीज के क्वेश्चंस हैं, उनमें ध्यान रखना, अगर आपको देखते ही क्लिक हो गया लॉजिक क्या है तो करो, अदरवाइज छोड़ो, क्योंकि कई बार लॉजिक थोड़ा कन्वोल्यूटेड होता है. अगर आपको इमीडिएट स्ट्राइक नहीं हो रहा है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या मिसिंग सीरीज वगैरह अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपने प्रैक्टिस की हुई होगी बुक से, मटेरियल से, तो आपको पता है 4-6 चीजें जो देखनी है वो कैसे उस सेम वो प्रोग्रेशन सी हो रही है उसमें, या स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, डिफरेंस है, डिफरेंस प्लस माइनस प्राइम नंबर, जो ऐसे 5-7-8 जो कॉमन आपको पता है चीजें, वो लगा के फटाक से देख लिया, ठीक है क्लिक हो गया, उनमें से कोई चीज सिंपल दिख रहा है मार्क करो, नहीं तो छोड़ो. जितना आपको लगेगी नहीं ये तो सीरीज के क्वेश्चन तो इजी होते हैं. कोई भी टॉपिक में आप ये ईगो इशू नहीं बनाना है कि ये टॉपिक के तो क्वेश्चन मेरे से तो हमेशा अच्छे से हुआ करते थे तो मुझे एग्जाम में करना ही है. तो ऐसा किसी भी टॉपिक में, किसी भी एरिया में हमें इतना ईगो इशू नहीं बनाना है. देखते ही हमें लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, you should know how to leave a question and move forward. अटकना नहीं है हमें किसी भी क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Sir, now same thing is valid here also. You have to maximize number of attempts. As we told you, accuracy is speed is inversely proportional to accuracy. जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा एक्यूरेसी नीचे जाता जाएगा. तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे अपनी स्पीड के कारण अपनी एक्यूरेसी को गिरने नहीं देना, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमाइजिंग अटेम्प्ट्स. ओके, लेकिन अटेम्प्ट्स उसको मत काउंट करना जो ऐसे ही करके लगा दिया था, गैस मार दिया था. दैट इज नॉट अटेम्प्ट. अटेम्प्ट जो आपने कैलकुलेट करके किया वो अटेम्प्ट है. ओके ओके, दिस इज मोर और लेस द सेम थिंग. अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों की बात चल रही है. ओके, दिस इज वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली लुक फॉर एसीटी. मेरा तो मानना था 1 to 60. सर ने आपको नया आइडिया दिया है 15 plus 45, which is again a good idea. तो आप दोनों में से आपको जो भी मॉक में अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करो.
आपको लगता है आपका इससे स्कोर बढ़ता है, आप उसको फॉलो कर लो, बिकॉज वी हैव डिस्कस बोथ द स्ट्रेटजीज विद यू. आपके हिसाब से whatever suits you and you feel like that, okay, this is something which I can attempt and will give me good marks, will give me good results, you can use that. Sir, तो वैसे तो आप लोग मॉक्स वगैरह की प्रैक्टिस इतनी अगर कर रहे होंगे और कॉन्फिडेंट होंगे तो स्ट्रेस पैनिक नहीं होगा एग्जाम में. फिर भी बाय एनी चांस एग्जाम करते वक्त, चाहे वो हम एनपैट की बात कर रहे हैं, एससीटी की बात कर रहे हैं, एकदम आपको पैनिक सा लगने लगे, तो कई बार क्या होता है, पैनिक लोअर बॉडी से, पेट से होते हुए निकल के ऐसा लगता है कि एकदम से माइंड ब्लैंक हो जाता है. होता है, कईयों के साथ हो जाता है कभी कभी एकदम. तो जैसे ही पैनिक आता है तो यही है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी खत्म कर देता है और आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है. आपने कुछ पढ़ा, पढ़ के आपको लगता है क्या पढ़ा, एकदम कुछ समझ ही नहीं आया, दोबारा पढ़े. मतलब कभी बाय चांस ऐसी सिचुएशन हो जाए तो जस्ट उस समय क्लोज योर आईज, सिट बैक, टेक अ डीप ब्रेथ. तो कुछ सेकंड्स की एक्सरसाइज है. टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ योर बेस्ट मोमेंट्स. जो आपने 10th में एग्जाम अच्छा दिया था, 12th में अच्छा दिया था, जो मॉक्स अच्छे दिए, जस्ट थिंक पॉजिटिव, टेक अ डीप ब्रेथ, देन स्टार्ट फर्दर. उस पैनिक में ही हम करते चले तो उस पैनिक में तो सब कुछ ब्लैंक होगा. वो तो आपको इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल नहीं सूझ रहे होंगे फिर वहां. तो बाय एनी चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए, होपफुली अगर आपने काफी अच्छे मॉक्स की ढंग से प्रैक्टिस करते रहे होंगे तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट. जिसे कहा इजी है, डिफिकल्ट है पेपर, उससे कोई फर्क नहीं है. इट्स ऑल रिलेटिव परफॉर्मेंस. डिफिकल्ट है सबके लिए डिफिकल्ट है, इजी है सबके लिए इजी है. तो हमें तो हमारी तरफ से बेस्ट देना है, चाहे जिस भी तरह का पेपर आया, तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है. फिर भी बस ये टिप थी कि अगर है तो हम डीप ब्रेथ लें, अपने आप पैनिक को अपने को कंट्रोल करें और फिर आगे चलें. so here there are 3 rules written based on 1 to 60. Attend the questions that you can do fast, rest attempt, mark for review and move. Do not overspend time on any question. Leave the question on slightest of doubt. Do not get stuck on any question. Okay, इमोशनली मत अटैच होना किसी क्वेश्चन से. 60 मिनट के गेम में इमोशनली अपन अटैच नहीं हो सकते, है ना, वरना फंस जाते हैं. ठीक है. सो you have to ensure that you are playing a mind game. Okay, so this is what first is. Second, a new addition to the list. 1 to 60 है. Distribution अगर section wise दिखता है, English plus GK 15 minutes, rest 45 minutes, and then attempt in the same format. Okay, should you guess? Yes, you should. And now, in case you have any query, feel free to ask us. Come on, guys. Any query? See, students, let me just remind you, we have planned a lot of revision sessions, workshops. Those who are offline students, तो वो classroom पे भी हैं. And then there are some online workshops also. Those who are only online with us, तो वो online workshops हैं ही, आप वो करें. जितना मटेरियल आपको स्टूडेंट होम पेज पे दे रखा है, आपके पास बुक्स थी, वो सब प्रैक्टिस करें. मॉक्स बहुत जरूरी हैं. और आपका जो एग्जाम डेट है जिसका है, 1 या 2 मॉक्स बचा के रखें, जो उससे 2 या 3 दिन पहले लास्ट मॉक हमने वो किया हो. और जो भी मॉक्स किए उनको हम बीच बीच में हम रिवाइज कर सकते हैं. एंड आई जस्ट एंड विद दैट वन कोट. बचपन में पढ़ी थी लाइन, बड़ी अच्छी लगी थी, इसीलिए आपको फिर से वो कह रहा हूँ. गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट till your good is better and your better best. So that is your mantra. Just try to keep on working that you are able to give off your best in the exams. All the best. Okay. So wish you all the best guys. Again, Gunur, I would say don't go with the target. Let the balls come and play as you can. Okay. That is what my advice is. So इसलिए सोच के मत जाना किस टारगेट से जाऊंगा, इसलिए इस बात को भूल जा. टारगेट को दिमाग में मत रखे, जैसे जैसे बॉल आता जाता है वैसे वैसे खेलता जाना. Okay, okay. So I'll answer a couple of questions.
study material, mock, sectional tests, are these enough for practice? Yes, big yes. Okay. Earlier, I was not serious about these entrance exams and I'm fully focused on my boards. Now I'll be able to crack. Yes, you can. Just revise whatever is given in the books and the material given to you. Do practice questions and attempt them. Can I attempt the sectional test again after attempting them once? No. Sectional test ek baar de diya to khatam ho jata. Okay. Anything else that comes to your mind? Okay. So wish you all the best, guys. May God bless you. Keep rocking. Take care of yourself, your hard work. And believe me, that's the only key to success. So if you will work, you will struggle with the question. You will struggle here. That struggle will eventually lead to good success in the final results. Okay. So all the best, guys. May God bless you. Thank you.